Hi, boys. Hi CLAT aspirants, my name is Rashi Suredia, your legal reasoning faculty here at Adda 247. We are doing passage of the day and we are on set 5 for your legal reasoning. So without any further delay, let's dive right into the passage. ये passage आपका relate करता है बेटा आर्टिकल 142 से limits of state power, क्या limit होती है आपके state के power की, हर चीज़ को यहाँ पर समझते हैं. तो ये है आपका passage, आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है. In an unprecedented judicial intervention, the three-judge bench of the Apex Court, presided over by Chief Justice Suryakant, expressed its inclination to invoke the extraordinary constitutional mandate under Article 142 to quash FIRs registered against student demonstrators involved in nationwide agitations over the NEET UG examination leak. This unrest precipitated the resignation of Education Minister and triggered introspection within the executive. However, the court's prerogative remains contingent upon the state furnishing a comprehensive segregated list distinguishing non-submersive students agitators from elements possessing serious criminal antecedents. Solicitor General Tushar Mehta submitted that law enforcement agencies intend to strictly circumscribe the investigative dragnet to 2,873 individuals possessing prior criminal histories, including history sheeters accused of heinous offences, while maintaining that the remaining individuals were students. Conversely, petitioner's counsel Vrinda Grover contended that the Delhi police failed to disclose specific FIR details or execute administrative accountability regarding the allegations of state-sanctioned violence. Specifically, the deployment of tear gas, pellet guns and non-consensual physical molestation of female demonstrators by plainclothes officers devoid of identification badges. While the respondents argued that the march constituted an unlawful assembly invoking the doctrine of clean hands and demanding an expression of remorse, the bench emphasized the necessity of balancing fundamental rights under Article 19 with systematic legitimacy. Adopting a contextual approach to criminality, the court distinguished bona fide exercising of fundamental freedoms from opportunistic criminal infiltration. It underscored the legitimate expectations of students whose future prospects hang in the balance, proposing a high-powered, gender-inclusive panel to scrutinize systematic grievances and police excesses urgently. आई नो बहुत फटाफट पढ़ लिया, मैंने तो बहुत फटाफट पढ़ लिया, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू बिल्डअप बेटा. अगर अभी तक भी अगर आपकी स्पीड बिल्डअप नहीं हुई है तो क्लैट के पेपर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. तो स्टार्ट रीडिंग दीज थिंग्स मच मोर रेगुलरली, ऑलराइट, एंड ट्राई इंक्रीजिंग योर स्पीड. सो हैविंग सेड दैट, पूरा पैसेज आपका रिलेट करता है नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ था. फॉलोइंग दैट उस जो प्रोटेस्ट हुए थे उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी थी, क्या लेजिटिमेट था, क्या नहीं था. एग्जीक्यूटिव एक्शन को यहाँ पर क्वेश्चन करा गया है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत जो बातें करी है वो सब हमने पढ़ लिया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस. आर्टिकल 142 लेट्स द सुप्रीम कोर्ट पास एनी ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस. जो आपका आर्टिकल 142 है ना बेटा, वो बात करता है कंप्लीट जस्टिस के बारे में, ठीक है, कि किसी भी मैटर में आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस यहाँ पर दे सकता है. फैक्ट्स क्या है? thousands of peaceful protesters are booked under common FIRs alongside violent infiltrators. Police gave no segregated list, leaving innocent students facing prosecution and threatens their academic careers. Can the court directly quash ऐसी FIRs? Answer is बेटा yes. यहाँ पर आपके कोर्ट्स डायरेक्टली ऐसी FIRs को क्वॉश कर सकते हैं 142 के तहत, क्योंकि 142 कोर्ट को ये जरिया देता है जिसकी वजह से वो अपने प्रोसीजर्स को बाईपास कर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके, राइट. कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइडेड इट कैन फैक्चुअली सेपरेट, दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेरी फैक्ट कि वो सेपरेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोटेस्टर्स को और जो ऐसे क्रिमिनल इंटेंशंस के साथ आए थे. तो देखो, अगर एक चीज यहाँ पर मैं तुम्हें और समझाऊं, आपका पैसेज ना इस चीज से भी रिलेट करता है कि भैया जो एक्चुअल इनोसेंट प्रोटेस्टर्स थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस पूरे इशू का बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन भी हो गया था, राइट. बहुत ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो गई थी, एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए थे. जैसे ही कोई चीज़ नेशन वाइड कंसर्न बन जाती है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले. तो कौन सी चीज़ वैलिड थी, कौन सी चीज़ इनवैलिड थी, कौन एक्चुअल प्रोटेस्टर्स थे, कौन बस वहाँ पर दंगे फसाद करने आ गए थे, इसमें एक जेन्युइन डिफरेंशिएशन होनी चाहिए. इज दैट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट.
चलो नेक्स्ट वन. The lawful assembly can turn unlawful only if its common objects shift towards an offence, resisting law or committing mischief or trespass. Students gather peacefully to demand exam reforms. उसी के तहत बीच में ही एंटी सोशल ग्रुप ने मिडवे एंटर करा एंड क्लैशेस वायलेंटली विद द पुलिस विदाउट द नॉलेज और शेयर्ड इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर स्टेट क्लेम कर रही है कि गैदरिंग स्टार्टिंग से ही एब इनिशियो हो गई थी, स्टार्टिंग से ही गलत थी. ये चीज जो है बेटा, ये है आपकी इनवैलिड, राइट. जो क्रिमिनलिटी है वो जज्ड होनी चाहिए ईच पार्टिसिपेटेंट के मेंस रिया से. अब देखो, तुमने लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ा होगा, तुम्हें यहाँ पर पता होगा कि आपके क्राइम में ना दो मेजर फैसेट्स होते हैं. एक होता है आपका एक्टिस रियस, दूसरा होता है आपका मेंस रिया. तो मेंस रिया यहाँ पर जरूर देखना चाहिए. द शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट एंड परसिवरिंग आर्टिकल 19 राइट्स ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The state owes a positive duty of legitimate expectation, fairness, proportionality, non-arbitrariness in actions touching citizens के rights and careers. पुलिस ने ओरली अश्योर करा पीसफुल प्रोटेस्टर्स को कि भाई उन्हें किसी प्रकार की पनिशमेंट फेस नहीं करेगी, और इसी चीज को मानते हुए जो आपके प्रोटेस्टर्स हैं वो वहां से डिस्पर्स कर गए. पुलिस ने फिर सीक्रेटली ओमनिबस एफआईआर रजिस्टर कर दी विदाउट शेयरिंग एफआईआर के नंबर्स और डिटेल्स विद दोज अफेक्टेड. बिना कोई चीज करे यहाँ पर अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं बेटा, तो ये वायलेट करता है आपके नेचुरल जस्टिस को एंड नॉन आर्बिटरीनेस को. सिटीजन्स के पास लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि भैया अगर उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है तो उन्हें बताया जाए क्यों, क्या, कैसे, किस लिए. एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर चीज होनी चाहिए, राइट. चलो नेक्स्ट वन. क्लीन हैंड्स. A party seeking equitable discretionary relief must not itself have acted unlawfully or improperly regarding the dispute. Respondents' counsel argues that the court should refuse Article 142 relief because the student agitators breached administrative march restrictions and showed no formal remorse. Clean hands का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? Clean hands का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर तुम कोर्ट में कोई केस लेकर जा रहे हो तो तुम्हारे खुद के हाथ भी साफ होने चाहिए. अगर दे आर ओनली टेंटेड विद कोई बुरी चीज कि भाई तुम खुद मर्डरर हो और तुम मर्डर के हक में लड़ने आ गए हो या मर्डर के अगेंस्ट लड़ने आ गए, तो कोर्ट कहेगा आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, राइट. चलो यहाँ पर बी होना चाहिए आंसर आपका. क्लीन हैंड्स कैन नॉट ब्लाइंडली निगेट फंडामेंटल प्रोटेक्शंस. आपके क्लीन हैंड्स हैं या नहीं है, आपके पास आपके फंडामेंटल अधिकार तब भी रहेंगे ही रहेंगे. दे स्टिल एग्जिस्ट, ऑलराइट. तो आर्टिकल 19 के तहत 21 के तहत दे स्टिल एग्जिस्ट व्हेन पीसफुल प्रोटेस्टर्स रेजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच और सीक अकाउंटेबिलिटी, राइट. चलो लास्ट वन, या फिफ्थ वन, लास्ट वन. ऑलराइट, यहाँ पर ये वाला क्या कह रहा है? सॉवरेन इम्यूनिटी डज नॉट शील्ड द स्टेट और इट्स ऑफिसर्स फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन स्टेट एजेंट्स वायलेट आर्टिकल 21, जिसमें फिजिकल इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी की बात करी गई है. दैट इज ड्यूरिंग द क्रैकडाउन प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स विदाउट नेम टैग्स allegedly molested female demonstrators. The state affidavit omits any actions against these officers citing operational necessity during public order crisis. उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि भैया ये जरूरी था, ये क्राइसिस रोकने के लिए प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना ये जरूरी था. उन्होंने ये नहीं बोला कि मोलेस्ट करना जरूरी था, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ये जो चार्जेस लगे हैं, ये जो बातें हो रही हैं कि प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने यहाँ पर फीमेल प्रोटेस्टर्स को मोलेस्ट करा है, इन चीज़ों के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है. तो यहाँ पर द स्टेट का फेलियर टू इन्वेस्टिगेट इट्स ओन एजेंट्स ये ब्रीच करता है आर्टिकल 21. एजेंट्स कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी, वो यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं मांग सकते फॉर वायलेटिंग डिग्निटी, बॉडीली इंटेग्रिटी एंड मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन के नॉर्म्स, राइट. तो ये था आपका पूरा पैसेज पर्टेनिंग टू योर लीगल रीजनिंग. किस तरीके से आपका यहाँ पर द इंटायर प्रोसेस वर्क्स, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़रूरी होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हो. ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन डेल्ट विद हियर. हैविंग सेड दैट, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी बिकॉज देयर इज़ वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट फॉर योर क्लैट नाउ. रेगुलरली बेटा ये पैसेज ऑफ द डेज को यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ मॉक्स PYQs को भी ज़रूर लगा लीजिए. ऑलराइट, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई एंड. दिस इज राशि सुरेडिया साइनिंग ऑफ.